Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss Quiz 2 General Financial Rule 2017. In this part, I will cover Rule 2, Rule 3 to Rule 10 of General Financial Rule 2017. Already in Quiz 1, I have discussed 10 questions. And in this part I will discuss around 17 questions. So my friend, please subscribe my channel, like my channel, share my channel and comment my channel. You can get notification for my upcoming videos. This part would be very useful for you for principal exams in NVS, KVS and UPSC Vice Principal exam and other departmental exams. So definitely I will cover all the parts of GFR 2017. So already if you go to my playlist you can find videos on procurement of goods and services. So except this part I will try to cover other parts. So today in quiz 2 I will discuss rule 3 to rule 10. Now you see question number 1. Local fund means a local fund as defined in rule dash of the treasury rules. It is rule 600, rule 650, rule 552, rule 652. So in which rule related to the treasury rules local fund is defined? Okay, here answer is rule 652. Okay, in treasury rule, if you go through 652, you can find the meaning of local fund, right? So here answer is D. Clear? Then question number 12. The public account of India referred to in article dash of the constitution. Already in first part I have discussed that Government of India having three accounts: Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India and another one public account. So the public account of India referred to in article dash of the constitution, it is four options given: 267(1), 266(1), 266(2), 116. Actually if you see the article 266(2), okay, in this article of the constitution there is complete information about public account of India. It is the third account of Government of India. In posterior time I will discuss about the three accounts: Consolidated Fund, Contingency Fund and public account. So 266(1), it is Consolidated Fund of India, and article 266(2), it is related to the public account of India. Okay, तो आंसर इज बिट सी. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे. डैश ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर सच यूनिट. जब फंड ट्रांसफर होता है वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर प्राइमरी यूनिट, वो ट्रांसफर को क्या कहा जाएगा? Okay, when the funds switch over from one primary unit to another primary unit, then that type of transfer, okay, it means what is basically the name of this type of transfer? Four options given: reappropriation, appropriation, budget and allotment. तो आंसर इज बिट ए, इट इज़ रीअप्रोप्रिएशन. जब ट्रांसफ़र का बात आता है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर प्राइमरी यूनिट, उसको रीअप्रोप्रिएशन कहा जाएगा. तो आंसर इज बिट ए, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे. डैश ऑफ GFR 2017 related to the doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules. The matter shall be referred to the Ministry of Finance for decision. बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि ऐसा कुछ रूल्स के ऊपर डाउट आता है कि ऐसा कुछ रूल्स को इंटरप्रेट किया जाएगा,
तो वो मैटर किसके पास जाएगा? द मैटर शैल बी रिफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर डिसीजन। तो ये कौन सा रूल में है? GFR का कौन सा रूल में है? 4 ऑप्शंस गिवन, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6. So actually if any type of doubt is arised related to the rule, then the matter should go to the Ministry of Finance for decision. It is given in rule 5. Okay, GFR rule 5. So answer is bit C, right? So any type of doubt arises means interpretation of any rules, the matter should go to the Ministry of Finance for decision. So it is given in rule 5 of GFR 2017. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे. द सिस्टम्स एंड प्रोसीड्यूर्स एस्टैब्लिश्ड बाय GFR रूल्स may not be modified by any other authority only with the express approval of the Ministry of Finance. ये एक्चुअली स्टेटमेंट गलत है. ओके, कोई भी सिस्टम प्रोसीड्यूर्स जो GFR रूल्स का है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है. इट मे बी मॉडिफाइड बाय एनी अदर अथॉरिटी बट आफ्टर इट मीन्स करेक्ट अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कोई भी सिस्टम प्रोसीज्योर के ऊपर ओके GFR रूल को मॉडिफाई किया जाएगा बाय एनी अदर अथॉरिटी बट आफ्टर अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो यहाँ पर दिया है GFR रूल्स मे नॉट बी मॉडिफाइड. ये स्टेटमेंट गलत है. ओके, तो एक्चुअली क्या है, द सिस्टम्स एंड प्रोसीज्योर्स एस्टैब्लिश्ड बाय GFR रूल्स मे बी मॉडिफाइड बाय एनी अदर अथॉरिटी बट आफ्टर कंप्लीट अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है. ओके, बहुत ध्यान से उसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आंसर इज बिट बी, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे. द इंडियन गवर्नमेंट्स फंड्स आर केप्ट इन डैश पार्ट्स. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंड्स है वो एक्चुअली कितना पार्ट्स में उसको रखा गया है? इन हाउ मेनी पार्ट्स एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट फंड्स आर केप्ट? 1, 2, 3, 4. एक्चुअली इट इज 3 है. आंसर इज बिट सी. तो ये जो 3 है, 3 पार्ट्स क्या क्या है ना? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 266(1) में है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 267(1) में है, थर्ड वन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 266(2) में है. क्लियर? सो ये 3 पार्ट्स है, उसके ऊपर आगे में देखेंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया. क्वेश्चन नंबर 17. द इंडियन गवर्नमेंट्स फंड्स आर केप्ट इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स, ये है 266(1), ये है 2 जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है 267(1), पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 266(2). ओके, तो ये जो 3 पार्ट्स है इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड्स को रखा जाता है, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे आगे में. तो आंसर इज बिट डी. चलो नेक्स्ट वन. कंसोलिडेटेड फंड इज फिल्ड बाय टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, loans taken by the Indian government, returning of loans or interest of loans to the government by anyone or agency that has taken it. All of the above. Actually all of the above होगा क्योंकि consolidated fund of basically इंडिया में तो ये जो फंड है जो आर्टिकल 266(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कंसोलिडेटेड फंड में बेसिकली टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है. टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स GST है. नॉन टैक्स रेवेन्यू का बात आएगा तो नॉन टैक्स रेवेन्यू फी, फाइन, पेनल्टी ये सब आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में. ओके, फी, फाइन, पेनल्टी, डिविडेंड, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू. समझ में आ गया? टैक्स रेवेन्यू क्या है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है. और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो GST है. हो गया टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू फी, फाइन, पेनल्टी, डिविडेंड, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है. तो ये जो रेवेन्यू रिसीव होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है.
जो भी लोन्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ओके, ये भी आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। रिटर्निंग ऑफ लोन्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन दिया था, ओके, उसका रीपेमेंट हो गया। हम कोई सपोज फॉरेन गवर्नमेंट को सपोज लोन दिए थे, ठीक है, कोई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन दिए थे, वो रिटर्न बैक हो गया। रिटर्निंग ऑफ लोन्स और इंटरेस्ट ऑफ लोन्स टू द गवर्नमेंट बाय एनीवन और एजेंसी दैट हैज टेकन इट, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। ओके, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज बिट डी। नेक्स्ट वन, द डैश ऑडिट कंसोलिडेटेड फंड्स एंड रिपोर्ट्स टू द रिलेवेंट लेजिस्लेचर्स ऑन देयर मैनेजमेंट। जब ऑडिट का बात आता है, आपको याद रखना है जो 3 फंड्स है, कंसोलिडेटेड फंड्स, कॉन्टिंजेंसी फंड्स, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये तीनों को ऑडिट करेगा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी उसको ऑडिट करेगा और रिपोर्ट किसको देगा? रिपोर्ट जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो तीनों का केस आपको याद रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तीनों का ऑडिट होगा किसके द्वारा? ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, राइट। तो आंसर इज बीट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द डैश होल्ड्स कंटिंजेंसी फंड, तो यहां पर फंड 2 बार लिखा गया, इसको काट दीजिए। द डैश होल्ड्स कंटिंजेंसी फंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के तरफ से जो कंटिंजेंसी फंड होता है वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी में रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, द सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये 4 ऑप्शन है। एक्चुअली ये जो कंटिंजेंसी फंड, तो किसके पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? ना द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, आंसर इज बीट ए। ओके, द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड्स कंटिंजेंसी फंड ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आंसर इज बीट ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट वन, ईच स्टेट कैन हैव इट्स ओन कंटिंजेंसी फंड एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल डैश। एवरी स्टेट का कंटिंजेंसी फंड होता है, तो एवरी स्टेट का जो कंटिंजेंसी फंड होगा वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो यहाँ पर कंटिंजेंसी फंड के ऊपर जो आर्टिकल था, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड, वो 267(1) में था। यदि कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट आएगा वो हो जाएगा 267(2), क्योंकि 267(1) है, इट इज़ द कंटिंजेंसी फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि स्टेट का बात आएगा, कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट, वो 267(2) में आएगा, आंसर इज बिट डी, राइट। चलो अभी थोड़ा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर डिटेल्स देखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दिस फंड इज फील्ड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी मैं बोला था, लोन्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, रिटर्निंग ऑफ लोन्स और इंटरेस्ट ऑफ लोन्स टू द गवर्नमेंट बाय एनीवन और एजेंसी दैट हैज टेकन इट। तो ये सब, ये जो भी फंड है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहेगा। कोई डायरेक्ट टैक्स है जैसे इनकम टैक्स की कॉरपोरेशन टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी, ठीक है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में होता है फी, फाइन, पेनल्टी, डिविडेंड, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सब आ जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में। लोन्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट जो लोन लिया है वो भी फंड रहेगा कंसोलिडेटेड फंड में। रिटर्निंग ऑफ लोन्स, हम लोन दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन दिया था, ठीक है, टू एनीवन, और उसका रीपेमेंट हो गया, वो भी आकर कंसोलिडेटेड फंड में रहेगा। सपोज हम लोन दिया था, उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन दिया था, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी कंसोलिडेटेड फंड में रहेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम दिस फंड, तो इसी से एक्चुअली गवर्नमेंट उसका एक्सपेंडिचर को मीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट नीड्स
पार्लियामेंटरी अप्रूवल टू विथड्रॉ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंड, जब कोई भी अमाउंट ऑफ मनी जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विथड्रॉ होगा तब पार्लियामेंटरी अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। ओके, सो व्हेन एनी अमाउंट ऑफ फंड विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देन पार्लियामेंटरी अप्रूवल इज नेसेसरी वन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल तो आप जानते हो, आर्टिकल 266(1) जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन किया गया है। प्रत्येक स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड है, ओके, विथ सिमिलर प्रोविजंस। और द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अभी मैं बताया था CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिट्स, तो मैं बोल चुका हूँ आपको, जो 3 पार्ट्स है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तीनों को ऑडिट कौन करेगा? CAG करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और फाइनली रिपोर्ट जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास, राइट। तो CAG जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आफ्टर इट मीन्स ऑडिट दीज फंड्स प्रोवाइडिंग रिपोर्ट टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, राइट। ये हो गया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर। अभी चलेंगे कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। प्रोविजन फॉर दिस फंड इज मेड इन आर्टिकल, तो बहुत मैं बोल चुका हूँ, आर्टिकल 267(1), स्टेट केस में आर्टिकल 267(2). इट्स कॉर्पस, ये याद रखना, इट्स कॉर्पस इज ₹500 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इन द नेचर ऑफ एन इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स एक्चुअली क्या है, बट इमरजेंसी टाइम में, बट अर्जेंट टाइम में वो मनी रिलीज होगा आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। सो इट इम्प्रेस्ड को याद रखना है, मनी मेंटेन्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। जो इम्प्रेस्ड है, मनी बेसिकली मेंटेन फॉर स्पेसिफिक पर्पज मीन्स ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसमें मनी को बेसिकली विथड्रॉ किया जाएगा कॉन्टिजेंसी फंड से। तो बेसिकली मनी केप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, इट इज इम्प्रेस्ड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन, द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, अभी मैं उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट, होल्ड्स दिस फंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो फंड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके पास है? द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस फंड इज यूज टू मीट अनएक्सपेक्टेड, आ गया ना, अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, कोई आपदा, कोई नेचुरल डिजास्टर, चाहे अर्थक्वेक, सुनामी, कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म, फ्लड, ओके, इस सिचुएशन में इसी फंड से मनी रिलीज किया जाता है। तो इसलिए इम्प्रेस्ड जो है, मनी मेंटेन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। और एवरी स्टेट केस में जो कंटिजेंसी फंड होता है वो आर्टिकल 267(2) में है, राइट। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये थर्ड पार्ट है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266(2), इसको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल अदर पब्लिक मनी, जो मनी एक्चुअली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये सब को छोड़कर जो फंड आएगा वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया को आएगा, ओके। जो भी फंड रह गया, जैसे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, रिकवरीज ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट, रिकवरीज ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट, ये सब फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। जो अदर फंड्स है वो पब्लिक अकाउंट्स को आएगा। अदर फंड्स में क्या आएगा देखेंगे, बैंक सेविंग्स अकाउंट ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, जो अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का जो बैंक सेविंग अकाउंट है वो पब्लिक अकाउंट, जो फंडिंग है बैंक सेविंग अकाउंट वो सब पब्लिक अकाउंट में आएगा। नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, डिफेंस फंड, ये पब्लिक अकाउंट्स में आएगा। और जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जो कभी जो PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, चाहे पार्ट ऑफ द शेयर हो कि 100% शेयर हो, गवर्नमेंट इसको सेल करके जो मनी रेज होता है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, वो भी जो डिसइन्वेस्टमेंट में जो मनी रेज होगा वो भी पब्लिक अकाउंट में रहेगा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ओके। नेशनल कैलामिटी एंड कॉन्टिजेंसी फंड, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नेशनल कैलामिटी एंड कॉन्टिजेंसी फंड, ये भी पब्लिक अकाउंट को आएगा, क्योंकि इसी समय जो बेसिकली फंड रहता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रहता है, ओके। प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस, ये सब पब्लिक अकाउंट में रहेगा, और सिमिलर फंड्स, ओके। जितना पब्लिक डेप्ट है, जितना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना पब्लिक डेप्ट है ये सब पब्लिक डेप्ट, समझ में आ रहा है, पब्लिक डेप्ट जो है वो आ जाएगा पब्लिक अकाउंट में।
जैसे ये जो है प्रोविडेंट फंड है, पोस्टल इंश्योरेंस है, ये सब पब्लिक डेब्ट है क्योंकि ये सब पब्लिक का मनी है। ओके, उसको क्या किया जाएगा ना, उसको पेमेंट किया जाएगा उनको फ्यूचर में। तो प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस, ओके, ये सब नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, ये सब जो पब्लिक डेब्ट है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएगा। चलो नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन। इसमें गवर्नमेंट को कोई परमिशन, डज नॉट नीड परमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांस। ये अकाउंट से एडवांस लेने के लिए गवर्नमेंट को कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। जैसे मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया केस में जब मनी विथड्रॉ होगा तब पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा। वैसे जब कॉन्टिजेंसी फंड में जैसे कोई अनफोर्सिन सिचुएशन में, ओके, और कुछ कैलामिटी सिचुएशन में यदि मनी विथड्रॉन होगा कॉन्टिजेंसी फंड से तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना चाहिए। और यहाँ पर यदि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये जो फंड है, इसमें सपोज गवर्नमेंट एडवांस लेना चाहता है तो किसका परमिशन का जरूरत नहीं है, राइट। ईच स्टेट कैन हैव इट्स ओन सिमिलर अकाउंट्स। प्रत्येक स्टेट का भी ये अकाउंट है, ठीक है। द ऑडिट मैं अभी बताया था, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो ये फंड को ऑडिट करेंगे और रिपोर्ट देंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। यहाँ पर एक मैं टेबल बना दिया, देखिए ये टेबल में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इनकम जो है, टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली बिलोंग्स टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो कंटिजेंसी फंड का फिक्स्ड पर्पस हो गया ₹500 करोड़, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में बताया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आपको पता हो गया कि किस तरीके का फंड रहेगा। उसके अलावा जो फंड गवर्नमेंट का रहेगा वो किस में रहेगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो आपको याद रखना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे बेसिकली टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, रिकवरीज ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट, ओके, इंटरेस्ट रिकवरीज बाय द गवर्नमेंट, ये सब फंड आ जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में। और अदर जो फंड होगा वो पब्लिक अकाउंट में रहेगा। अब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सपेंडिचर, ये ऑल एक्सपेंडिचर है। कॉन्टिजेंसी फंड में अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर और पब्लिक मनी अदर देन दोज कंसोलिडेटेड फंड, ओके, क्योंकि पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट एडवांस ले सकता है, ओके, कोई डेफिसिट गवर्नमेंट मीट करने के लिए सपोज पब्लिक अकाउंट से वो मनी विथड्रॉ कर सकता है और कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट वन, पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन, यहाँ पर रिक्वायर्ड, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब मनी विथड्रॉ होगा तब पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ओके, और ये प्रायर टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का पहले अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का। और ये जो है कॉन्टिजेंसी केस में रिक्वायर्ड आफ्टर देखिए, एक्सपेंडिचर होने के बाद किसका अप्रूवल चाहिए, बेसिकली पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन चाहिए आफ्टर एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको याद रखना है, जो पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया केस में प्रायर, ओके, ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के पहले। कॉन्टिजेंसी केस में आफ्टर एक्सपेंडिचर। और कोई पब्लिक अकाउंट से ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल्स में बोल चुका हूँ, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266(1), कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267(1) एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया 266(2), ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। ऑल मनीज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट either as dues of government or for deposit or remittance or otherwise shall be brought into government account without delay under article dash of the constitution। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, इसमें क्लियरली मेंशन है, जो भी मनी रिसीव होगा, ओके, मनी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो इमीडिएटली डिपॉजिट होगा विदाउट एनी डिले, कोई डिले नहीं होगा, वो इमीडिएटली डिपॉजिट होगा। हम जानते हैं कहाँ कहाँ पर कि कौन सा फंड कहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल में है, तो ये जो है आर्टिकल 283(1) में है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फंड को एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको इमीडिएटली डिपॉजिट किया जाएगा विदाउट एनी डिले। ये आर्टिकल 283(1) में है। तो आंसर इज बिट डी। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 23 को चलेंगे। मनी रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विथ एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन in his capacity as such other than revenues or public money is raised or received by government shall be paid into the। यहाँ पर क्या है, यदि सपोज कोई ऑफिसर, कोई डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर वो मनी रिसीव करता है
अदर देन, ये इसको ध्यान देना है, अदर देन द रेवेन्यूज और पब्लिक मनीज रेज्ड और रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेवेन्यूज है और जो पब्लिक मनीज रेज्ड होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जाएगा, मगर यहाँ पर अदर देन जो मनी रिसीव होता है वो रेवेन्यूज नहीं है कि कोई पब्लिक मनीज रेज्ड में नहीं आता है, तो उसमें कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर मनी रिसीव करता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो किस अकाउंट को जाएगा, वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया को जाएगा। आंसर इज बिट सी, क्योंकि हम आप जानते हो कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कि लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि रिकवरीज ऑफ लोन्स, कि रिकवरीज ऑफ इंटरेस्ट, ये सब जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। मगर यहाँ पर दिया है यदि कोई डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर इट मीन्स मनी रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो कौन सा फंड में डिपॉजिट होगा, वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होगा, क्योंकि वो जो है अदर देन रेवेन्यूज और पब्लिक मनीज रेज्ड और रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ऑल मनीज रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट, आपको याद रखना है कि कोई भी मनी सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिट होगा कि रिसीव होगा तो ऑफ इंडिया साल बी पेड इनटू द पब्लिक, वो पब्लिक अकाउंट को जाएगा। अदर देन डैश, आपको याद रखना है सभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो अदर कोर्ट्स है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कि चाहे कोई सपोज कंज्यूमर कोर्ट है, ये सब है। तो इस केस में एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि ऑल मनी इज रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट अदर देन डैश, अदर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट में जो मनी डिपॉजिट होगा, इसको याद रखना है, हाई कोर्ट में जो मनी डिपॉजिट होगा कि रिसीव होगा वो पब्लिक अकाउंट को नहीं जाएगा। ओके, ये आंसर बिट ए है, आंसर बिट ए है। हाई कोर्ट के अलावा चाहे सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनमें जो मनी डिपॉजिट होगा और रिसीव होगा वो पब्लिक अकाउंट को जाएगा, मगर एक्सेप्ट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जो मनी डिपॉजिट होगा कि रिसीव होगा वो पब्लिक अकाउंट को नहीं जाएगा, वो अदर अकाउंट को जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नहीं दिया है मगर वो क्लियरली मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिट और रिसिप्ट ऑफ मनी एंड अदर कोर्ट साइड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, उसमें जो डिपॉजिट ऑफ मनी एंड रिसिप्ट ऑफ मनी वो सब पब्लिक अकाउंट को जाएगा, मगर हाई कोर्ट में जो डिपॉजिट होगा रिसीव होगा वो पब्लिक अकाउंट को नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 को चलेंगे। ईच अकाउंट्स ऑफिसर will send an extract from his accounts showing the amounts brought to credit in the accounts in each month to the dash concerned। एवरी अकाउंट ऑफिसर वो एक एक्सट्रैक्ट सेंड करते हैं और उसमें मेंशन होता है कि हाँ ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट में वो मनी क्रेडिट हुआ है एवरी मंथ में। वो किसके पास जाएगा, वो एक्सट्रैक्ट किसके पास जाएगा, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास जाएगा। तो इन एवरी मंथ अकाउंट ऑफिसर सेंड एन एक्सट्रैक्ट ओके फ्रॉम हिज अकाउंट शोइंग द अमाउंट्स brought to credit in the accounts in each month to the controlling officer concerned। आंसर इज बिट सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 26 को चलेंगे। द हेड ऑफ अकाउंट टू हिज पब्लिक मनीज shall be credited and the withdrawal of monies therefrom shall be governed by the relevant provisions of list of major head and minor head, delegation of financial power, GAR गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990, याद रखना है GAR गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स, वही है सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स 1983, ये दोनों ईयर को आपको याद रखना है। और सच अदर जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स आज में भी इशूड इन दिस बिहाफ ट्रेजरी रूल्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बिट सी होगा, बिट सी होगा। द हेड ऑफ अकाउंट टू विच पब्लिक मनीज शैल बी क्रेडिटेड एंड द विथड्रॉल ऑफ मनीज देयरफ्रॉम शैल बी गवर्न्ड बाय द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ GAR ओके गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 ओके उसमें प्रोविजन दिया गया है ओके और दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स 1983, इसमें प्रोविजन दिया गया है कि जो हेड ऑफ द अकाउंट पब्लिक मनीज शुड बी क्रेडिटेड, शैल बी क्रेडिटेड एंड विथड्रॉल ऑफ मनीज देयर फ्रॉम द हेड ऑफ अकाउंट, जो हेड ऑफ अकाउंट में जमा होगा पब्लिक मनी, जो चाहे क्रेडिट हो कि विथड्रॉल हो ओके वो प्रोविजंस किस में है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 और अनदर वन सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स 1983। ठीक है, तो आंसर इज बिट सी।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल मनी इज रिसीव्ड बाय और डिपोजिटेड विथ एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इन हिज कैपेसिटी एज सच अदर दैन रेवेन्यूज ओके और पब्लिक मनी रेज्ड रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट। हम जानते हैं, अभी मैं बताया कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में दिया गया है कि सपोज कोई मनी रिसीव होता है इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, कोई मनी रिसीव होता है इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और वो रेवेन्यूज नहीं है, अदर दैन रेवेन्यूज और पब्लिक मनी रेज्ड, ओके, अदर दैन रेवेन्यूज और पब्लिक मनी रेज्ड। तो बेसिकली मैं बार बार बता चुका हूँ, अदर दैन रेवेन्यूज और पब्लिक मनी रेज्ड मीन्स और कोई भी मनी रिसीव होगा इन कनेक्शन विद द यूनियन अफेयर्स तो वो पब्लिक अकाउंट को जाएगा, वही ये दिया गया है, रेज्ड और रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट। वो कौन सा आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 284, क्योंकि पहले एक आर्टिकल आपको बोला था मैं 283(1), वो वहाँ पर है कि कोई भी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से यदि कोई मनी रिसीव होता है, कि कोई मनी डिपॉजिट होता है तो विदाउट डिले, वो डिले नहीं होगा, इमीडिएटली इट मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट्स। वो 283(1) था, मगर यहाँ पर दिया गया है कि कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, यदि कोई मनी रिसीव होता है कि डिपॉजिट होता है और वो रेवेन्यू में नहीं आएगा, कोई अदर पब्लिक मनी रेज में नहीं आएगा, क्योंकि वो पब्लिक अकाउंट में जमा होगा, तो वो कौन सा आर्टिकल में है? 284, आर्टिकल 284 में है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन था, तो ये पार्ट 2 था। देन जो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊंगा, पूरा कवर करूंगा, और एक्सेप्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उसके ऊपर पूरा वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा है। सो विथ पेशेंस माय फ्रेंड्स, प्लीज गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। टुडे आई हैव डिस्कस्ड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। उसके ऊपर आप थॉरो हो जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू और नमस्कार।